آپ کو لے چلتے ہیں براہ راست جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں تمام میڈیا کے ساتھیوں کا کہ ایک ورکنگ ڈے اس گرمی میں اور اس وقت باچا خان مرکز میں آئے ہیں ہمیں کوریج دینے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے، تو میں میڈیا کے تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں، اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ ایک کال پہ آپ یہاں آئے ہیں۔ میں اپنے سینئر ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ ہم نے کل رات کو جب میٹنگ کی فیصلہ کیا اور آج سب حاضر ہیں، تو دوستوں اور ساتھیوں اور میں خصوصاً مفتاح صاحب کا، علی اکبر گجر صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جو ساتھی ہیں جن کی مجھے زیادہ نام نہیں معلوم، میں سب کو باچا خان مرکز میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح آپ سب کے علم میں کہ بلدیہ میں جو الیکشن ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں مفتاح صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں، اور ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے جس امیدوار کو وہاں پر کھڑا کیا تھا، حاجی اورنگزیب خان، جو بلدیہ کے سابق ناظم رہ چکے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی نائب صدر ہیں، پارٹی کا ایک بہت پرانا سینئر کارکن ہے۔ اس لیے آج پارٹی نے جو فیصلہ کیا کہ ہم جس فیصلے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے کینڈیڈیٹ نے کل رات کو ہمیں کھل کر یہ اجازت دی کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، آج پارٹی جو فیصلہ کرے گی اگر مجھے کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری پارٹی اور ان کی اپنی وسائل، پارٹی کی وسائل سب موجود ہیں، لیکن پارٹی اگر کہتی ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے سامنے آپ نے وڈرا ہونا ہے تو میں بالکل تیار ہوں۔ یہی ہے صاحب۔ دوستوں اور ساتھیوں، مجھے پتا ہے کہ میرے میڈیا کے ساتھیوں کو ایک بات کی زیادہ ہوگی کہ آج عوامی نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کر رہی ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم جو اس ملک میں ایک جمہوری الائنس ہے، جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، آج عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ کل سے نہیں ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہم اس الیکشن میں ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بحیثیت پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کر رہے ہیں۔ فیصلے مرکز کے ہمارے پی ڈی ایم سے نکلنے کی وہ ہو چکے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں کل دوبارہ بیٹھ جائیں، کل دوبارہ پی ڈی ایم بحال ہو جائے، لیکن یہ کل کی بات ہے، اس وقت ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اس علاقے میں ہم سب تمام، باقی بھی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ایز اے پارٹی ہم بہتر امیدوار سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے حق میں فیصلہ عوامی نیشنل پارٹی نے سندھ کی تنظیم نے کیا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح ہماری پارٹی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے اور 100 سال سے آج ووٹ کو عزت دو، مسلم لیگ نون کا یہ نعرہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد صرف 1 سال کے بعد ہم سے ہمارا ووٹ چوری ہو گیا تھا۔ ہم اس وقت سے اس ملک میں
वोट के लिए हम लड़ रहे, जमहूरियत के लिए लड़ रहे, कि बाबरा की शहीद जो हमारे 613 शोधा इसलिए शहीद हो गए कि उस वक्त हमारी मुंतखब हुकूमत को रात के अंधेरे में खत्म करके कयूम खान की मुस्लिम लीग को उस वक्त की जबरदस्ती बिठाया गया था। और उस आदमी ने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ किताब लिखी थी, और पाकिस्तान का वो वाहिद मुसन्निफ है कि जब गुजराला बनता है तो अपनी किताब पर उसने खुद पाबंदी लगा दी। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी की जमहूरी हुकूमत को उस वक्त हुक्मरानों ने खत्म करके हमारे वोट को चोरी किया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक अवामी नेशनल पार्टी कभी भी जमहूरियत पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, चाहे कितनी अमर आए, कितने डिक्टेटर आए, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी हमेशा लड़ती रही जमहूरियत के लिए। इसलिए इस वक्त भी हम समझते हैं कि ये वो नवाज शरीफ साहब नहीं, ये आज का नवाज शरीफ साहब है जो जमहूरियत के लिए इस वक्त लड़ रहा है। हम समझते हैं कि हमने इस मुल्क को अगर चलाना है, इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है, तो हमने जमहूरियत को मजबूत करना होगा। इसलिए इसी मुल्क जमहूरियत के नाम पर बनाए और ये जमहूरियत के नाम पर चलाए। तो मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं। और हम आज इसी हल्के में जहां मुफ्ता साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अवामी नेशनल पार्टी तमाम कारकुन, तमाम तंजीम के मशवरे के बाद हम मुफ्ता साहब की हिमायत का ऐलान करते हैं। और आज से ही उसी हल्के में जहां जहां हमारा कारकुन, हमारा साथी, हमारा लीडर, हमारा रहनुमा जहां जहां मौजूद है, वो मुफ्ता साहब को अपना कैंडिडेट समझेंगे, अपना उम्मीदवार समझेंगे। और मुफ्ता साहब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनुस साहब का और ख़ास तौर पर औरंगज़ेब खान बुनैनी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये फैसला लिया है और हमारी पार्टी के हक़ में वो दस्तबरदार हो रहे हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूनुस साहब ने ये बात कही है कि ये PDM का फैसला नहीं है, ये इनकी पार्टी ने लोकल फैसला किया है। और मैं ख़ास तौर पर इनका इस बात पर मशकूर हूँ कि इन्होंने इस सेंट्रल पार्टी से इजाज़त ली और यहाँ पे फैसला किया है। आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हक़ में अपना कौमी असम्बली का नुमाइंदा जो था वहाँ से विड्रॉ किया था। एक भी कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी फ्रेंचाइज है उस इलाके में और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बड़े वोटर हैं इनके। तो ये हमारी कैंडिडेसी को, हमारे हक, हमारी जो उम्मीद लगी हुई है उसमें ये बहुत ज़्यादा जान भर देगा। और मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट से और इनके वोट से अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको जीत देगा। उस इलाके के जो मसाइल हैं वो हमारे दोनों के हम शेयर करते हैं। उस इलाके के अंदर पानी नहीं है, जगह जगह पे पानी नहीं है, और हम समझते हैं कि अगर पानी कहीं पर भी आए कराची में तो फिर सब जगह पे आना चाहिए। और लसानियत की बुनियाद पे या मसलक की बुनियाद पे इलाके में पानी ना देना बुरी बात है। हम इस तरह समझते हैं कि सड़कों के मरम्मत, इसी तरह सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो यूनुस साहब ने बात करी है मियाँ नवाज शरीफ की, कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया है, वोट को इज्जत दो। हम मियाँ नवाज शरीफ फेडरेशन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और वो तमाम छोटे सूबों को हमेशा से साथ रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि न सिर्फ वोट को इज्जत दी है, बल्कि हमने इस मुल्क के वोटर्स के लिए काम किया है, खिदमत करी है। आज अगर 3 बत्तियाँ जल रही हैं तो उसमें से 2 बत्ती के बिजली के प्लांट जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे हैं। आज अगर घर में चूल्हे में गैस आ रही है तो उसमें हमारे LNG के टर्मिनल शामिल हैं। अगर पाकिस्तान में किसी ने कोल के प्लांट्स लगाए तो नवाज शरीफ ने लगाए। अगर पाकिस्तान में रास्तों को कम कर दिया गया है, मतलब जो 3-3 दिन का रास्ता कराची से पेशावर होता था, अगर ये 1-1.5 दिन का हो गया है तो वो मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाए। तो नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से खिदमत करी है और वही नवाज शरीफ की सुन्नत पे और वही मुस्लिम लीग नून की रिवायत पे हम यहाँ पे खिदमत करेंगे। और अब जबकि हमारे साथ AHP के भाई मिल गए हैं तो हमारा इंशाअल्लाह ताला जज्बा भी डबल हो जाएगा और इनके साथ मिलकर हम इलाके की खिदमत करेंगे। तो मैं साबिक नाज़िम औरंगज़ेब खान बुनैनी साहब का, यूनुस साहब का और इनके तमाम साथियों का अपनी तरफ से, अपने भाई अली अकबर गुज्जर की तरफ से, नासिर महमूद हमारे कराची के सेक्रेटरी की तरफ से, अली अकबर गुज्जर हमारे फर्स्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको हमारे हक़ में ये विड्रॉल दिया। बहुत शुक्रिया।
अगर आप सवाल बतिया टाउन में आप इंतखाब की मुहिम चला रहे हैं, वहाँ पर पुलिस तरफ आपके हवाले से वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप वोटर को गाली दे रहे हैं। एक तरफ आप वोट को और वोटर को इज्जत की बात करते हैं, दूसरी जानिब ये रवैया भी है। जी बिल्कुल, ये एक महीना पुरानी बात है कि मैं एक मार्केट में था तो एक किसी और सियासी पार्टी के वर्कर थे वो, और वो चिल्ला रहे थे। मैं उनके पास गया बात करने तो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मियां नवाज शरीफ को चोर कहा। मैंने कहा देखो ये ना कहो। एक मरतबा मैंने उनको मना करा कि मियां नवाज शरीफ को आप चोर ना कहें। उसने जब दूसरी मरतबा कहा तो मैंने कहा फिर आप चोर हैं, और फिर उसके बाद गाली नहीं देनी चाहिए थी मुझे, ये मेरी गलती थी। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ को चोर बोलेंगे तो जवाब तो जरूर आएगा भाई। साहब ये बता दें कि रिसेंटली असद उमर साहब आए थे कराची जी रिसेंटली असद उमर साहब कराची आए थे, उन्होंने ये दावा किया है कि आप जब वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त जो है डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, आज पीटीआई की हुकूमत में नहीं हुआ और नाकाना पाकिस्तान को कंप्लीट कर रहे थे, तो आप उनके इस बयान को कैसे यार, देख रहे हैं? और दूसरा पीडीएम के हवाले से पीडीएम में इस वक्त शामिल नहीं है, तो आपकी हिमायत किस तरह से हो रही है, किस तरह से? पीपुल्स पार्टी का मामला मैं पहले ये जवाब देंगे। यह तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई वाले भाइयों ने हलफ उठाया कि कभी सच नहीं बोलेंगे। मतलब मेरे ज़माने में $1 115 रुपए का था, 115 रुपये 80 पैसे का। ये ऑफिशियल रेट है, ये आप मालूम कर सकते हैं। 31 मई 2018 को जब हम छोड़ के गए थे 115 रुपये का डॉलर था। ये डॉलर 168 पे लेके गए, अब वापस 154 पे लेके आए। तो या तो 168 पे पिछले साल ले जाना चाहती थी, या आज फिर गलती कर रहे हैं। ये लोग 13% इंटरेस्ट रेट लेके चले गए। चीनी 55 रुपए की हमने 5 साल मेंटेन करी, कभी 60 के ऊपर नहीं गई। चीनी जो है वो आज 115 रुपए की मिल रही है। मुर्गी का गोश्त हम 158 रुपए का छोड़ के गए थे, ये 450 रुपए का मिल रहा है। अंडे हम 84 रुपए दर्जन छोड़ के गए थे, 170 के मिल रहे हैं। घी हम 142 रुपए का होता था, आज 300 रुपए का घी मिल रहा है। 51 रुपए इमरान खान साहब टैक्स ले रहे हैं 1 किलो घी के ऊपर, 18 रुपए टैक्स ले रहे हैं वो 1 किलो चीनी के ऊपर। वो क्या बातें कर रहे हैं? असद उमर ने तो मतलब लोगों का जीना अजीरन कर दिया है। इस मुल्क में सबसे जो बुरा रिसेशन आया है वो असद उमर और इमरान खान लेके आए हैं। हफीज शेख से पूछ लीजिए कि वो क्या कहते हैं असद उमर के बारे में, और फिर आप पूछ लीजिए हमाद अजहर से कि वो हफीज शेख के बारे में क्या कहते हैं। तो इमरान खान ने तो एक पाकिस्तान की मईशत को जितना डिस्ट्रॉय किया है, 312 बिलियन की मईशत को 264 पे ले गया, हर पाकिस्तानी को गरीब कर दिया है। 11% पाकिस्तानी औसतन गरीब हो चुका है। और जो महंगाई आज आई है, ये सब मेरे भाई आप भी जानते हैं, आप लोगों के घर में बजट चलाते हैं। देखिए आप लोग के पास तो एटीएम नहीं है, हमारे पास एटीएम नहीं है। वो तो सिर्फ इमरान खान साहब के पास फैसिलिटी है एटीएम की, तो हमारे पास तो हम तो मेहनत करके पैसे कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। आप देख लीजिए बजट किस तरह बनते हैं आज घर में। तो असद उमर साहब को जरा सा सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। पार्टी का जवाब आपसे भी मुलाकात करने के लिए, तो उसके बारे में बता दें कि अब आप पीडीएम के कब उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे? भाई मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हूँ, नवाज शरीफ की टिकट पे हूँ। शहबाज शरीफ की सिग्नेचर से मैं टिकट जमा करा देता हूँ और मैं शेर के निशान पे लड़ूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे ANP की तमाम लीडरशिप का, खास तौर पे इनकी लोकल लीडरशिप का, बट ऑल्सो उनकी सेंट्रल लीडरशिप का, जिनसे शाहिद अब्बासी साहब का भी कॉन्टैक्ट हुआ है। शाहिद सैयद साहब तो मेरे भाई हैं, हम इनसे बातचीत करते रहे। यूनुस भाई हैं, औरंगजेब बनैरी साहब हैं, तमाम का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन नून का कैंडिडेट हूँ, इनके साथ मिलकर हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कैंडिडेट में मुस्लिम लीग नून का ही। पीपुल्स पार्टी के साथ भी आप गए थे हिमायत के लिए, उनकी तरफ से क्या कोई जवाब आया? बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था कि वो हमको बताएंगे, मशवरा करके अपनी पार्टी से जवाब नहीं आया। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कियाना न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।